Good morning students, class 12th. Today I am going to start D and F block element. In previous video we have completed P block element, D and F block element. So first we see the transition element. The transition element, or you can say D block element. D block element. If we are talking about the periodic table, there is this one is S block element, and here is the P block element. 1 2 3 4 5 and this one is the P block element, and here is the D block element. It means you can say that D block element is lie between S and P block element. Any S block element, these are alkali metals or alkaline earth metals. Here are P block elements. They have 6 group from right start from 13, 14, 15, 16, 17 and 18. And this one is 1 and 2. After that 3 to 12. These all are D block element. They are called transition element because they show the transition from metals to non-metals. यानी S block element के अंदर इधर हम क्या है, metals हैं, और यहाँ है आपका non-metals. तो ये क्या शो करते हैं? They show transition. So they are called transition elements. And there is a how many transition elements are in that table. So you see that there is a table in front of you. The first one is scandium, titanium, vanadium, chromium, Saktiwaka, Man, Pico, Ni, These are the D block element. This is the 3, 40, 50 and 60. Saktiwaka, Manfico, Niku, Jan. Second one is Wakyari, Jara, Nibha, Moth, Tak, Rukawat, Rahe, Padi, Age, Padi, A, and C. La, Hafta, Varna, Ve, Udhar, Idhar, Pitai, और होगी. So there is a table in front of you. This is the starting from scandium to zinc. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. Or how we can learn this complete series, that there is a mnemonic for you. Science teacher very crazy
मांगे फीस कोर्स नहीं कंप्लीट जरा भी। ओके, साइंस टीचर वेरी लेजी मांगे फीस कोर्स नहीं कंप्लीट जरा भी। यानी वाइचर पेट्रियम जिर्कोनियम नियोबियम मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम रुथेनियम रोडियम पैलेडियम सिल्वर एंड कैडमियम। एंड द लास्ट वन इज लैंथेनम हाफनियम टैंटलम टंगस्टन रेडियम ऑसियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड एंड मरकरी। सेकंड वन इज यारी जरा विवाह मौत तक रुकावट काहे पड़ी आगे बढ़ी। ला हफ्ता वरना रे इधर उधर इधर पिटाई और होगी। By this way you can learn this table. In front of you there are the D block elements. So how many are transition elements according to new definition? Zinc, cadmium and mercury. They have complete shell. इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है D10 क्या आते हैं 10 के 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं and there are only 27 transition element. यहां पर कितने हैं 27 transition elements हैं। जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट एंड द एलिमेंट व्हिच हैव पार्शियली फिल्ड डी सबशेल इनके अंदर क्या होना चाहिए पार्शियली फिल्ड डी सब शेल और उसके अंदर D12 D9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए क्योंकि D के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करते हैं। एनी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर D1 से D9 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एंड यहाँ पर जिंक कैडमियम और मरकरी दे आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो यू कैन से दैट ऑल द D block elements, all the transition elements are D block elements, but all the D block elements are not the transition elements. Okay, so iron, copper and gold. Iron means Fe, iron, copper, Cu and gold. अगर हम बात करें तो all the D block elements are considered to be as metal. जितने भी D block elements हैं सब क्या है metals हैं। लेकिन अगर हम बात करें iron, copper and gold are among the transition elements that have played important role in the development of human civilization. यानी इनका human civilization को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल है। And the inner transition elements such as thorium, plutonium and uranium are producing excellent source of nuclear energy in modern times. यानी inner transition elements या जिनको हम F block element भी कहते हैं उनमें आपका यूरेनियम क्या रोल प्ले कर रहा है देन थोरियम दे प्ले excellent source of nuclear energy in modern times. So now position in the periodic table. Let's see. Position in the periodic table. Position of D block elements in the periodic table. The D block occupies the large middle section of the periodic table. Flanked between S and P block elements. S and P block elements means they lie between S and P block elements और एक बड़ा लार्ज एरिया क्या करते हैं कवर करते हैं। एंड द सेकंड वन इज द
orbitals of the orbitals of penultimate energy level of atoms receive electrons giving rise to 4 rows of the transition metals. मीन्स क्या मतलब है कहने का कि जो d ऑर्बिटल्स हैं उनका जो पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। इसी कारण से इनकी कितनी रो बनती है, 4 रो बनती है। दैट इज लाइक 3d 4d 5d and 6d. There are the 4 rows of, or you can say 4 series of the d block element. Now electronic configuration यदि हम करें इनका, तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो d सबशेल के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। सो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ d ब्लॉक एलिमेंट लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। General electronic configuration of outermost orbitals of these elements is n-1 d 1 to 10 or ns 1 to 2 electron. This is the general electronic configuration for d block elements, where stands for n-1. ठीक है जी, यानी n-1 क्या है, stand for the inner d orbitals. inner d orbitals को n-1 शो करता है, एंड विच में है 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर 1 से लेकर के और 10 तक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं। और इसका एक्सेप्शन है भाई, यहाँ याद रखना है, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर पैलेडियम। ठीक है जी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है -1 1 to 10 और ns 0। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके s ऑर्बिटल के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होता है। तो दिस इज द एक्सेप्शनल केस पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप याद रखेंगे। एंड पैलेडियम इज ओनली एलिमेंट विच हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। पैलेडियम के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी आउटरमोस्ट शेल के अंदर। क्लियर? नाउ फर्स्ट सीरीज वी आर टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट सीरीज और 3D। इसके अंदर आपका जाएगा साइंस टीचर वेरी क्रेजी मांगे फीस कोर्स नहीं कंप्लीट चाहिए। ठीक है जी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। अगर हम इनका क्या देखें, एटॉमिक नंबर, और यहाँ जाएगा आपका 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन। तो जेड है इसका 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और यहाँ के लास्ट में 30, यानी 21 to 30। इस 3D सीरीज के अंदर यहाँ एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के और 30 तक के एलिमेंट लाई करते हैं।
आउटरमोस्ट शेल के अंदर 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2. लेकिन देयर इज ए एक्सेप्शनल 2 2 2 2 1 एंड 2. और 3d के अंदर जो इलेक्ट्रॉन राइज करेंगे इसमें 1 2 3 5 5 6 7 8 10 और 10. There is a 2 exceptional case in 3D series. अगर आप कॉपर क्रोमियम को देखें तो क्रोमियम में क्या है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और कॉपर के अंदर देखें तो कॉपर में क्या है? फुल फिल्ड. यहाँ पर p के अंदर कितने? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है इसका वो बनेगा आपका 3d 5 और ns1. और कॉपर के केस में ये हो जाएगा आपका 3d 10 और ns1. तो ये इस सीरीज के अंदर देयर आर द 2 एक्सेप्शंस, क्रोमियम एंड कॉपर. क्रोमियम के अंदर यहाँ पर s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, एक्सेप्शनल केस है. जबकि n+l रूल को ये क्या करता है? फॉलो नहीं करता. ठीक है जी. एक इलेक्ट्रॉन इसकी s ऑर्बिटल में आएगा और 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे d ऑर्बिटल में. ये होगी स्ट्रक्चर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और कॉपर के केस में है ये फुल फिल्ड ऑर्बिटल. तो ये था आपका 3D सीरीज. इसका निमोनिक एक बार फिर बता देता हूं. साइंस टीचर वेरी क्रेजी, मांगे फीस, कोर्स नहीं कंप्लीट जरा भी. ओके, नेक्स्ट 4D. नेक्स्ट वाला देखेंगे. सेकंड सीरीज है 3D के बाद 4D. This is the second series, students, in front of you. Why picture means deuterium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver and cadmium. Atomic number है 39 to 48. There are the 10 elements and इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी देखें तो यहाँ पर नियोबियम, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन. और जो एक्सेप्शनल केस है वो है पैलेडियम आपका. इसके s में क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन है, और आउटर मोस्ट शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड सिल्वर, अनदर वन इज द सिल्वर इज द एक्सेप्शनल केस फॉर दिस सीरीज. इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? 4d 10 और ns1. यहाँ होगा आपका 4d 10 और ns0. तो यहाँ पर भी नियोबियम के केस में 4d 4 और ns1. These are the some exceptional case of this series. ये याद करने का तरीका है. यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राहें पड़ी आगे खड़ी. नेक्स्ट सीरीज है आपका थर्ड सीरीज और 5D सीरीज. थर्ड सीरीज और 5D सीरीज. थर्ड सीरीज है आपकी थर्ड सीरीज और 5D सीरीज. इसके अंदर आ जाएगा आपका लेंथेनम, लाख, हफ्ता, वर्णा, रे, उधर इधर, ऑस्मियम, इरिडियम, बिटाइन और होगी. लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57 और हाफनियम का 72. यहाँ पर आते हैं इनके बीच में लेंथ लाइन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड मरकरी का हो गया आपका 80. और यहाँ जो सीरीज बनेगी दैट इज 6s और 5d के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6s में यहाँ पर आ गया आपका 2 2 2 2 2. ऑस्मियम के अंदर भी आपके 2, रेडियम के 2, प्लेटिनम में 1, गोल्ड के अंदर 1 और मरकरी के अंदर 2. यहाँ पर 2 एक्सेप्शन है आपके 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गया आपका 9 10 और 10. मीन्स प्लेटिनम और गोल्ड. प्लेटिनम का हो जाएगा आपका 3d 9 ns1 और ये आ जाएगा आपका 3d 5d. सॉरी
ये थी आपकी 3D। नाउ 3D थर्ड सीरीज, नाउ फोर्थ सीरीज। फोर्थ सीरीज की अगर हम बात करें यानी 6G, यानी कि 6G के अंदर आपके आते हैं, यह जाएगा आपका यहाँ पर एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, ठीक है, यूरोपियम, Sg, BH, HS, MG, DS, RG और CN। यानी between this actinium and rutherfordium there are inner transition elements known as actinides। एटॉमिक नंबर की बात करें तो Z का हो गया आपका 89, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 and 112 सीरीज। यह आ जाएगा आपका 7s and 6G। There are 2 electrons in S, 7s, and in the case of RG there is a 1 electron, and 6G 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ आ जाएगा 10 और 10 means this one is the exceptional case। Electronic configuration of this series is 6G10 or NS1। So all these are the fourth series 3D, 4D, 5D and 6G of D and F block elements। All these are, ये जो है सारे के सारे कैसे हैं? All these are synthetic elements। All these are synthetic elements and radioactive in nature। ये सब के सब मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं, नेचुरली इनमें से कोई नहीं पाया जाता। सो ऑल दे आर सिंथेटिक एलिमेंट्स। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल केस आपने याद करके रखने हैं वो कौन कौन से हैं? वो आ जाता है आपका 3D सीरीज के अंदर कॉपर और क्रोमियम। मीन्स आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करके रखेंगे दैट इज क्रोमियम, कॉपर। क्रोमियम का हो जाता है आपका D5S1, D10S1। कॉपर के बाद आ जाएगा आपका पैलेडियम, यहाँ पर क्या है जी D10 और S के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन। पैलेडियम के बाद आ जाता है आपका सिल्वर 47, यह आ जाएगा आपका D10 और S1 देन गोल्ड, इसका भी D10S1 देन प्लेटिनम। प्लेटिनम का है आपका D9 और S1। ये कुछ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो एक्सेप्शनल केस हैं। These are the exceptional case of D and F block elements। तो आगे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया भी है। क्वेश्चन इज दैट ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से, on what ground can you say that scandium Z is equal to 21 is a transition element where but zinc Z is equal to 30 is known। So on the behalf of electronic configuration we find that configuration of scandium Z is equal to 21 is 3d1 and 4s2, whereas it has partially
partially filled d subshell in its ground state, whereas in the case of zinc, that is Z is equal to 13. Electronic configuration would be 3p10 and 4s2. It means in all its oxidation state, there is +2. Oxidation state में क्या आएगा? +2. It has fully filled D10 configuration. इसके अंदर fully filled D10 configuration है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, जबकि जिंक नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे सिमिलर क्वेश्चन है, सिल्वर एटम हैज, अनदर क्वेश्चन इज दैट सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स 4d10 in its ground state. How can you say that it is a transition element? कैसे कह सकते हैं? सिल्वर क्या करता है? सिल्वर फॉर्म करता है कंपाउंड दैट इज AgF2, सिल्वर फ्लोराइड। ऑन बिहाफ ऑफ दिस, इन दिस इट हैज D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो वी कैन से सिल्वर इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर? ध्यान रखेंगे, सिल्वर फ्लोराइड के अंदर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखते हैं, इसके अंदर पार्शियली फिल्ड डी फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, डी फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं D9, सो इट हैज D9 कॉन्फ़िगरेशन, सो वी कैन से दैट सिल्वर इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ in next video we will discuss about the generalities of a bond and the some characteristic feature of this group। इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट में हम कुछ जनरलाइजेशन ऑफ बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इस पीरियड के फीचर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।